एक्टिव थायराइड हार्मोन की कौन सी फॉर्म होती है? T4, फ्री T3, बाउंड T4, बाउंड T3. Sodium absorption from DCT increase when plasma osmolarity increase. Plasma का volume increase, potassium concentration in the plasma increase, calcium concentration in the plasma. ठीक है. Heat loss is controlled by vasoconstriction of skin vessels, vasodilation of skin vessels, anterior hypothalamus या preoptic area. Heat loss is controlled by heat loss को कौन कंट्रोल करता है? preoptic area. In mitochondria, protein generated by Golgi apparatus, nucleus, gene, sodium, potassium, ATPase, endoplasmic reticulum. ER. Hence, bodies are found in G6PD, hereditary spherocytosis, pyruvate kinase deficiency या चिलोसिस. ठीक है. Important structure in preventing the reflux of cecal material into the ileum is ileocecal valve, peristalsis, mucosal fold, rectal fold. Okay. Carcinoma of cervix diagnosis by capsule invasion to basement membrane, intact basement membrane, increase E. cadherin. ठीक है. What is placebo effect? Doctor know the drug, subject does not know the drug, subject know the drug, it is an actual treatment. Child having hydrocephalus due to defect in meninges, ependymal cells, epidural cells, arachnoid granulations. ठीक है. Artery palpated between trachea and sternocleidomastoid is external jugular vein, external carotid artery, common carotid artery, internal jugular vein. ठीक है. On ECG, the correlates with completely depolarized ventricle is ST segment, QRS complex, PR interval, QT interval. A wave corresponds to PR segment, ST segment, PR interval, QT interval. PR segment. लेटिस्मस डॉट्स की नर्व सप्लाई क्या होती है? मीडियन नर्व, accessory नर्व, एक्सिलरी नर्व, लॉन्ग थोरैसिक या थोरैकोडोर्सल. Which bacteria has no cell wall? Chlamydia, Mycoplasma, Klebsiella, E. coli या Shigella. Neural tube defect occur due to deficiency of magnesium, calcium, iron, folate, B6. Relay and integration of all the senses in basal ganglia, DCML, cerebellum या thalamus. Relay और integration senses सारी कौन सी होती हैं? Thalamus. Site of murmur for aortic regurgitation is neck, apex of heart, left fifth intercostal space, right second intercostal space, left second intercostal space. Aortic area कौन सा होता है? Right. Cancer most prevalent in the male of Karachi is lung, stomach, liver, oral या pancreatic. Oral. After gastrectomy, which type of anemia occur? Iron deficiency, megaloblastic या thalassemia. फ्लोर ऑफ एक्सिला में अगर एक स्टैब वुंड आ जाए तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है? एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व या अल्नर नर्व. MC1 differentiates in thymus to form the helper TH1, helper TH2, CD4, CD8. Metabolic acidosis mechanism is loss of carbon dioxide, gain of bicarbonates, gain of pH या gain of bicarbonates. Metabolic acidosis. ठीक है. चलिए आई थिंक आज वाला पेपर स्टार्ट करते हैं. पेपर 9
पेज नंबर 509, नवंबर 21 एंड आफ्टरनून। ठीक है, इसके टोटल कितने एमसीक्यूज हैं? इसके भी 138 हैं। ठीक है, हो जाएगा। नहीं, ज़्यादा है, 161 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Person had traumatic incidents of upper limb for 3 months. He feels pain and tenderness. Is swelling developed at the region on the X-ray? Swelling is bright. After 1 year, it resolved. Phenomena is hypertrophy. इसे कहते हैं मेटाप्लेसिया। ये जो पूरा स्नैरियो है, किस चीज़ का स्नैरियो? मायोसाइटिस ओसिफिकेंस का। ठीक है, कि सबसे पहले एक ट्रोमा हुआ, वहाँ पेन और टेंडरनेस, स्वेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो वो हर सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटाप्लेसिया हो गया है। फोलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, किस में मेटास्टेसिस चली जाएगी? इसकी लंग्स के अंदर। लीजन है अगर लेफ्ट साइड की ऑप्टिक ट्रैक में, तो ऑपोजिट साइड के, इनके राइट साइड का होमोनिमस हेमिनोपिया हो जाएगा। पेशेंट विथ enlarged hand and feet with associated joint on MRI. Mass compressing the optic chiasma was found, which can occur in this patient is bitemporal hemianopia. लेफ्ट साइड का अगर टेम्पोरल गायरस के अंदर लीजन आता है, तो यानी कि राइट साइड का सुपीरियर क्वाड्रिनोपिया हो जाएगा। ठीक है, 6 में कहते हैं कि ए 45 years old previously normal lady started having dyspnea, dry cough and fever. अच्छा, अभी सारी चीज़ों में आपने बताना है किस में कौन सी हाइपर डायग्नोसिस क्या है इसका। कफ है, फीवर है, 3 months back recovered for 1 month when she went on vacation. Again developed symptoms when she got back on her Canaries. एक्सरे मल्टीपल नोडुलर लीजन, एक्सरे के अंदर क्या आ रहे हैं? मल्टीपल नोडुलर लीजन्स आ रही हैं लंग्स के अंदर। और मैकेनिज्म उसका क्या है? ये सारे में कौन सी है? हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस डेवलप हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? ये टाइप 3 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस। प्रेग्नेंट, इसका अपने डायग्नोसिस याद रखने के हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस है, क्योंकि फीवर हो रहा है, कफ, डिस्निया, ड्राई कफ। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट वुमन विथ इंक्रीज्ड एब्डोमिनल girth ड्यू टू normal response to physiological stimuli. A newly married female came with right iliac fossa pain. Her TLC increased. She has fever and vomiting. Her LMP 3 weeks back. Likely सारा डायग्नोसिस किस चीज़ का? अपेंडिसाइटिस। और अपेंडिसाइटिस को रूल आउट करने के लिए हम क्या चीज़, कौन सा क्राइटेरिया होता है? उसका निमोनिक क्या है उस एक वर्ड का जो हम अपेंडिसाइटिस। वेरी गुड, मेंट्रल्स। ए आ जाएगा ना, ए से हमारे पास एनोरेक्सिया आएगा। ठीक है, अच्छा, ए वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम HIV विच कैंसर, शी इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग, तो उसे यूट्राइन या सर्वाइकल कार्सिनोमा। ठीक है, डेवलप हो सकता है। एक्सट्रीम अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट चली जाए, तो उसमें उसकी एग्जांपल में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग। डिक्रीज्ड गैस्ट्रिक सिक्रेशन बाय सिक्रेटिन इन नॉर्मल पर्सन, डिक्रीज्ड नॉर्मल इंसान के अंदर अगर एसिड सिक्रेशन डिक्रीज हो जाए, तो वो प्रोटीन डाइजेशन भी एबनॉर्मल हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। ए पेशेंट विथ हाइपरटेंशन एंड ऑन लैब्स इन्वेस्टिगेशन VMA फाउंड इन यूरिन, तो उसमें कौन सी चीज़ आती है? फियोक्रोमोसाइटोमा का सैरियो, उसमें कैटिकोलामाइंस और मेटानेफ्रिन्स इंक्रीज हो जाती हैं, और उसके यूरिन में होमोवेनिलिक एसिड या विनाइल मैंडेलिक एसिड आता है। पोस्टीरियर ब्रांच एट एओटिक बाइफर्केशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, उसमें कौन सी इसकी पोस्टीरियर ब्रांच है एओटिक बाइफर्केशन की? मीडियन सैक्रल आर्टरी। एनसीड्स का मैकेनिज्म इफेक्शन क्या इनहिबिट करते हैं? रेक्टोनिक एसिड को। मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन PCT के अंदर, हर चीज़ की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन PCT के लेवल पे होती है। 56 years old executive officer after eating burger with fries get his lipid done
After centrifugage, his plasma appear milky white. This is due to chylomicrons. Infection in kidney pus up to Geroda fascia. With fascia intact, it can spread to inferior to the pelvis. यानी कि pelvis में नीचे जा सकती है. ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एंड एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज. इसका करेक्ट ऑप्शन बताएं कि ये अमाइनो ट्रांसफेरेज विटामिन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें. B6 होगा या इन्होंने बायोटिन दिया हुआ है. B6 होगा. ठीक है. पायरोडॉक्सिन. Women with breast cancer subsequently develop metastasis to vertebral column. The most direct route of spread to the tumor to the vertebral column is venous connections के थ्रू. अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाए तो वो कौन इंक्रीज करता है. पैराथायराइड हार्मोन. पेशेंट हैज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. अब जो स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर्स होते हैं वो किसके होते हैं. मॉर्फिन के होते हैं. और जो वीक रिसेप्टर्स होते हैं वो ट्रेमाडोल के होते हैं. सर ने इस तरह याद करवाया था कि एक जो डोल होती है वो वीक होती है. Patient after penetrating abdominal injury on antibiotics for 12 weeks therapy and 3 weeks TNP with ECMOSIS. प्लेटलेट नॉर्मल प्लेटलेट उसके 14 है तो ये किस चीज़ की डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है. उसे इंजरी हो रही है ना, उसे ब्लीडिंग हो रही है और एक्मोसिस डेवलप हो गई. विटामिन के की डेफिशिएंसी है. A man after RTA got a head injury which is to be stitched 10 inches wound laceration. Which anesthetic agent will be best suturing. पेन को कम करने के लिए लिग्नोकेन देंगे और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए यानी कि ब्लीडिंग ना हो उसके लिए हम एड्रेनालिन भी दे देंगे. इवेंट अकर्ड बिफोर द ओपनिंग ऑफ एओर्टिक वाल्व इज बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर इन इन्फ्लेमेशन एक्सुडेट. follicular carcinoma of thyroid metastasis to which organ. Lungs. Patient present with neck fever, neck rigidity, Kerning sign positive आता है. Which investigation should be carried out. CSF analysis. Only indication of use of radionuclide scan in a patient. यानी कि थायराइड कार्सिनोमा का डायग्नोसिस है तो क्या किसके लिए चेक करते हैं. मेट्स के स्प्रेड के लिए. वुमेन विद आयोडीन डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है. पुअर डाइटरी स्टेटस. अपोप्टोसिस इट इज करेक्टराइज्ड बाय नो होस्ट इन्फ्लेमेशन. विच ड्रग इज सेफ इन लीवर डीकम्पनसेशन. डीकम्पनसेशन में आपने क्या याद रखना है. ऑक्साजीपाम. ठीक है. और जो चार्ली ऑप्शन है फ्रेंटेनिल वो हम उसमें क्या आता है कि वो प्री ऑप पेशेंट्स में जो लिवर डिजीज होती है लिवर डिजीज के प्री ऑपरेशन से पहले पेशेंट्स को दी जाती है. ठीक है. लोराजीपाम. ठीक है. और ये अच्छा इसमें जो अल्फा ऑप्शन है डायजीपाम वो क्यों नहीं देते. उसका साइड इफेक्ट क्या होता है. डायजीपाम क्या करेगी. डायजीपाम थ्रोम्बोफिलेबाइटिस कॉज करती है. डायजीपाम का इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है. इट कैन कॉज थ्रोम्बो ठीक है. थ्रोम्बोफिलेबाइटिस कॉज कर सकती है. Which one of the following necrotic when given epidural cause delayed respiratory depression. तो severe respiratory depression को कौन करवा रहा होता है. मॉर्फिन. severe respiratory depression कौन करवाता है. मॉर्फिन. The serology test aspergillus में हम कौन सा करवाते हैं. ग्लैक्टोमैन. posterior and anterior humeral artery are branches of axillary artery. A patient having vesicles on the lateral forehead and medial side of the eye and ella of nose with severe facial pain and headache. इसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व है. ट्राइजेमिनल की मैक्सिलरी डिवीजन. ए पेशेंट अंडरगोइंग थायरॉइडेक्टमी डेवलप हॉर्सेस ऑफ वाइस इंजर्ड इन द विसिनिटी इन द इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी के साथ क्या गुजरी है. रीकनल लैरेंजियल नर्व. और सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी के साथ क्या गुजरी है. एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व. ए पेशेंट अंडरगोइंग थायरॉइडेक्टमी डेवलप हॉर्सेस ऑफ वाइस. ये रिपीटेड एमसीक्यूज है. Young man sustained RT with multiple rib fracture has difficulty in breathing. You notice that this is moving more during breathing. Which muscle help him in the breathing. तो उसे कौन सा मसल अब हेल्प करा ब्रीदिंग में. एक्सटर्नल ओब्लिक. हैंड फुट एंड माउथ डिजीज ये वायरस कौन सा करवाती है. इसे कहते हैं कॉक्सिया वायरस. और ये एक नॉन इन्वेलप्ड RNA वायरस आता है. ठीक है.
अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि जो पार्वो वायरस होता है वो डीएनए वायरस होता है या आरएनए वायरस होता है? पार्वो वायरस डीएनए में वो नेकेड होता है या इन्वेलप्ड होता है? डॉक्टर आयशा ने और डॉक्टर जम ने ठीक आंसर दिया है, नेकेड होते हैं। ठीक है, तो आप मुझे एक और बताएं यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, हेपेटाइटिस डी आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है? हेपेटाइटिस डी। नो, इट इज एन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ठीक है, आरएनए वायरस है ये। यस, हेपेटाइटिस बी इन्वेलप्ड डीएनए वायरस है। ठीक है, ये मैंने इसकी सारी ना क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, मैं आपको इस लेक्चर के बाद सेंड करती हूँ। अच्छा, किस एमसीक्यूज पे थे हम? इंटरकोस्टल नर्व्स आर फ्रॉम, इसे कौन सप्लाई करते हैं? डोर्सल रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स। नर्व पासिंग थ्रू द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, वो कौन सी होती है? फेशियल नर्व। एमनियोटिक फ्लूइड टर्म के ऊपर उसका वॉल्यूम कितना होता है? 800 ml। स्ट्रक्चर प्रोन टू डैमेज इन क्वाड्रेंगुलर स्पेस इज ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व। इन क्यूबिटल फोसा मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर इज मीडियन नर्व। ठीक है, what are the small vessels, small vein that commonly accompanying the arteries and play a role in venous return? These are called vena communicantes. A tailor had TB infection transmitted to two of his family members. Mode of spread of this is aerosolized air droplets. Patient present with breathlessness, pH उसकी 7.3 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया, ऑक्सीजन 75 पे आ गया और बाइकार्बोनेट कम हो गए 18 पे। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट कम है, पीएच भी उसकी कम साइड पे, तो एसिडोसिस, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू उसमें 60 years old patient with medical condition is likely present with a decreased reticulocyte count due to impaired erythropoiesis। किसके पेशेंट के अंदर होता है? सीकेडी वाले पेशेंट के अंदर impaired erythropoiesis होती है, यानी कि खून ठीक से नहीं बनता, अनिमिक हो जाते हैं वो पेशेंट्स। Pain of indirect inguinal hernia is due to compression of which nerve in inguinal canal? Ilioinguinal nerve. PCT absorb 45 to 50% of which one of the following? इसमें यूरिया की एब्जॉर्प्शन होती है कम, और इसमें 100% प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव टिब्यूल पे किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है? 100%। किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होगी 100%? ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ये क्या बनाती है? एपीब्लास्ट बनाती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम क्या बनाती है? हाइपोब्लास्ट। और इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम क्या बनाती है? लैटरल प्लेट मेसोडर्म। सिकल सेल एनीमिया के अंदर अगर हेड और फुट लेग सिंड्रोम डेवलप हो गई है तो उसमें कौन सी हीमोग्लोबिन आती है? HbS। HB आपने एस से याद रखना है कि सिकलिंग हो रही है। S। Which blood vessels primarily supply the CBD? proximal portion of CBD हमने कल भी किया था, hepatic artery। Patient present with decreased peripheral pulsation with abdominal pain, creatinine kinase normal है, pulsating abdominal mass, तो ये कौन सा होता है? Abdominal aortic aneurysm। A non-CLD patient present with hemidemesis resulting from rupture of esophageal varices। ब्लीडिंग कहाँ से आ रही है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से। विच स्ट्रक्चर इज नोटेबली एब्सेंट इन सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड व्हेन कंपेयर टू द थोरेसिक एंड लंबर स्पाइनल कॉर्ड? तो उसमें लैटरल हॉर्न नहीं होता। ठीक है, सर्वाइकल सेगमेंट के अंदर लैटरल हॉर्न नहीं होता। विच मसल रिजल्ट इन वोकल कॉर्ड इन द एबडक्टेड पोजिशन? जो पोस्टीरियर क्रेकोरेटिनॉइड है वो क्या करता है? उसे एबडक्टेड पोजीशन में रखता है। और अगर एक टीचर है वो क्लास में कहती है कि आप लो पिच करें, वॉइस की पिच को कम करें, तो कौन करेगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? बीटा।
12 years old child present with hepatosplenomegaly, blood count show decreased TLC count and decreased platelet. Which one of the following investigation should be done? तो आप क्या करवाते हैं? इसका निमोनिक है बासु, BASU। बी से ब्लड कल्चर फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में विडाल टेस्ट जो कि अब क्लिनिकली कोई नहीं करवाता, थर्ड वीक में स्टूल कल्चर, फोर्थ वीक में यूरिन कल्चर। फिफ्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर इज बॉक्सर्स फ्रैक्चर। फर्स्ट कौन सा होता है? बीनेट फ्रैक्चर। और स्मिथ में क्या होता है? रेडियस का एंड फ्रैक्चर हो जाता है। प्रोलैक्टिन इंड्यूस्ड हाइपर प्रोलैक्टिनोमा अकर ड्यू टू डिक्रीज डोपामिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब है डोपामिन जो है उसका एंटेगोनिस्ट होता है ना, इसका मतलब है कि डोपामिन प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा जो वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करे। तो अब हम इसकी थेरेपी के लिए क्या चीज़ देते हैं? जब प्रोलैक्टिनोमा इसके ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं हम ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं जो डोपामिन का एगोनिस्ट है। वो डोपामिन को रिलीज करवाता है, डोपामिन फिर आके प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर देती है। 55 years old male develop gastric lymphoma, एपिगैस्ट्रिक पेन। तो गैस्ट्रिक लिम्फोमा का मेन एच पायलोरी का जो इन्फेक्शन है ये पहले पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कॉज करता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रहे तो ये क्या कॉज करता है? गैस्ट्रिक लिम्फोमा, जिसे हम कहते हैं मार्ट लिम्फोमा। ये कैंसर भी कॉज कर देता है स्टमक में। लेकिन इसका MCQs आता है कि ये वाहिद कैंसर है जिसका गुड प्रोग्नोसिस है, ये ट्रीट हो जाता है। The artery which can be palpated under the mandible near the angle of jaw, this is facial artery. Hyperthyroidism clinical sign are due to which one of the following? उसमें लिपोलाइसिस इंक्रीज हो जाती है। क्लोरोथायाजाइड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट उसका क्या आता है? केजी लक। तो इसमें हाइपोकैलीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया आ जाएगा। Content of umbilical cord at birth is 2 umbilical arteries and 1 large umbilical vein. In hanging sudden death, hanging में सेकंड वाला जो C2 होता है उसमें डेथ होती है, उसमें उसका ओडोनाइट प्रोसेस फ्रैक्चर होकर उसकी वजह से डेथ होती है। एडल्ट में अगर जेनिटल्स के ऊपर लीजन्स आ जाए अंडर माइक्रोस्कोप शो सिक्यूमस पेपिलोमा, वो कौन सा होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। पास्ट पॉइंटिंग डन ड्यू टू लीजन ऑफ, ये आपके पास इसमें ये सारा कुछ कौन करवाता है? सेरिबेलम। ये आप लोग काफ़ी टाइम से साइन पूछ रहे हैं तो मैं अब आपको टाइप कर देती हूँ। इसकी सीक्वेंस क्या है? डिस डायोकाइनेजिया ग्रेटर देन डिस आर्थरिया ग्रेटर देन डिसमिट्रिया इसमें निस्टिग्मस थर्ड नंबर पे है या डिसमिट्रिया, या आप लोग ये करेक्ट है सीक्वेंस? या इसमें मुझे अक्सर लग रहा है कि एक जगह पे सीक्वेंस निस्टिग्मस निस्टैग्मस थर्ड पे था। मैम निस्टैग्मस थर्ड पे है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। ठीक है, इसकी आप करेक्शन कर लें। डिस आर्थरिया, ठीक है, फिर निस्टिग्मस आता है, फिर डिसमिट्रिया आता है। ठीक है, ए पार्किंसन पेशेंट टेकिंग लीवोडोपा, इसका साइड इफेक्ट क्या आ जाएगा? ठीक है, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। ठीक है, एनएस ए पेशेंट टेकिंग लीवोडोपा का साइड इफेक्ट क्या आता है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाती है। एनेस्थीसिया कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन 70% बर्न्स में। तो बर्न 70% बर्न वाले पेशेंट में आपने सुक्सामिथोनियम नहीं देनी। 72 MCQs है, इतना बड़ा MCQs है, उन्होंने पूछा हुआ है सिंपल सा, आपने लास्ट MCQs करना है। लास्ट लाइन इसकी कि सारे एरिया को इसकी जो इफरेंट इम्पल्स है क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्सी वो कौन सप्लाई कर रहा होता है? एग है इसका, निमोनिक एग, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व, एग। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन कौन करवाता है? ओस्टियोफाइट्स।
पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व किस मसल को सप्लाई करती है? इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा सुपिनेटर को सप्लाई करती है। इसके स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए हैं, ठीक है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व कौन सी होती है? मीडियन नर्व होती है, अल्नर होती है या रेडियल होती है? ये भी आपने किया हुआ है। रेडियल, स्पेलिंग मुझसे गलत हो रहे हैं जल्दी में, ठीक है। तो ये रेडियल होती है। A smoker who is having 2 packs per day with associated heart disease is at risk of one of the following arterial complications। तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन आर्टरी कौन सी होती है? कॉमन आर्टरी इसमें कौन सी होती है? एओर्टा। और एथेरोस्क्लेरोसिस में कौन सी आर्टरी आ जाएंगी? एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हुई हुई है 75 में। मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल ट्यूमर कौन से होते हैं? एस्ट्रोसाइटोमा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि जब भी प्रोस्टेट की लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन सी होती है? प्रोस्टेट कार्सिनोमा का सारा सिनेरियो है उसमें इंटरनल आइलिक और एक्सटर्नल आइलिक मेनली अगर पूछा जाए तो इंटरनल आइलिक। लेफ्ट शिफ्ट में हम क्या कह देते हैं? बोहर। राइट शिफ्ट वाला बोहर होता है, लेफ्ट वाला हेलेडन इफेक्ट आता है, ठीक है। लेफ्ट में हर चीज़ डिक्रीज हो जाती है ना, तो उसमें हाइपोथर्मिया, उसमें क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। एक्सट्रीम लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इसकी एग्जांपल में आ जाती है। सडन स्टूडेंट हैज़ वाइवा एग्जाम बट वेव्स आर सीन ऑन EEG। अभी इस टाइम आप सब लोग वाइवा दे रहे हैं या क्लास ले रहे हैं, आपका माइंड अलर्ट है और बिजी है, आप लोग MCQ सॉल्व करें तो आपके माइंड में इस टाइम बीटा वेव्स आएंगी EEG के ऊपर। क्लास के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए अपनी आइज़ को क्लोज कर लेंगे तो वो कौन सी वेव्स आ जाएंगी? अल्फ़ा वेव्स आएंगी। उसके बाद आप कुछ टाइम के लिए लाइट सी नैप ले लेंगे, लाइट स्लीप में चले जाएंगे तो वो थीटा वेव्स आएंगी। उसके बाद लेट नाइट में आप डीप स्लीप में चले जाएंगे। डीप स्लीप में कौन सी वेव आती है? डेल्टा। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट भी सॉल्व कर लिया। 82 कहते हैं कि एंटीसेप्टिक स्किन वॉश के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अल्कोहलिक या क्लोरहेक्सिडिन। In abdominal and gynecological surgery, which one of the following organism causing infection which are penicillin resistant and beta lactam production are? वो कौन से होते हैं? बैक्टीरियाइड्स होते हैं, ठीक है। जब भी किसी सर्जरी के बाद कोई इन्फेक्शन हो जाए एब्डोमिनल सर्जरी के बाद, तो वो कौन से होते हैं? आपने क्या चूज़ करना है? बैक्टीरियाइड्स को आपने चूज़ करना है। और आपने अल्फा ऑप्शन कब चूज़ करना है? E. coli वाला। जब आपके पास सब एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो जाए। तो आपने क्या चूज़ करना है? E. coli, ठीक है। और इसमें फिर हम एसाइटिक टैब भी करवाते हैं। लेकिन अगर एब्डोमेन की सर्जरी है तो आप क्या चूज़ करेंगे? बैक्टीरियाइड्स को। पेशेंट हैविंग प्रोटीनूरिया, ओकेजनल हिमाचूरिया, कॉज ऑफ जनरलाइज्ड बोर्डिंग स्वेलिंग में क्या आती है? एल्ब्यूमिन लॉस हो जाएगी तो प्लाज्मा कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाएगा। एम बैंड इज इन मल्टीपल माइलोमा। एम बैंड कौन प्रोड्यूस करता है? प्लाज्मा सेल्स। A patient has CVA now has zero power in the muscle. Which one of the following sensory receptors are not functioning in this patient? Nociceptors are not functioning. ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स में कॉज क्या करते हैं? ये डिस्ट्रॉय करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। COPD के अंदर इन COPD डायग्नोसिस विल बी मेड बाय वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज इक्वल टू 0.1। इंट्रासेलुलर फ्लूइड एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हैज इंक्रीज ग्लूकोज। एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी कहाँ से पास करती है? फोरामेन ओवेल से। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस इज स्टैफ ओरियस करवाता है। पेशेंट हैज़ लोअर लिम्ब पैरालिसिस, तो लोअर लिम्ब में कौन सी होती है? ACA और अपर लिम्ब में कौन सी होती है? MCA। लेटरल पार्ट ऑफ फुट अगर डैमेज हो जाए तो इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन सी होती है? पॉपलेटियल। सिस्मॉइड बोन कौन सी होती है? पटेला। लेकिन सिस्मॉइड कार्टिलेज क्या होती है? एला ऑफ द नोज ग्रेटर देन लेरिंग्स।
ए बॉय कंटिन्यूसली फेलिंग इन द एग्ज़ाम। अगर कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है लेकिन वो अपना गुस्सा अपने ऊपर निकालने की बजाय पेरेंट्स पे निकाल देता है, दिस इज़ कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ये वाला एमसीक्यूज़ मेरे एग्ज़ाम में भी आया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। बिहेवियर साइंसेज में से आपके 4 से 5 एमसीक्यूज़ आते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन से भी आपके 5 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। और ये 2-3 पेजेस के टॉपिक्स हैं और आप लोग 1-2 घंटे लगा के ये टॉपिक्स अच्छे से कर लें, आपके 10 एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। और आई थिंक इसके थोड़े से ही चीज़ें डबल ए के ऊपर दी हुई हैं, वो भी आप कवर कर लें। लार्ज ट्यूमर इन द पोस्टीरियर मीडियास्टम किसको कंप्रेस करती है? डिसेंडिंग। पोस्टीरियर मीडियास्टम के अंदर क्या होता है? डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। हीमोफीलिया ए क्या होता है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और थैलेसीमिया किस चीज़ में आ जाता है? थैलेसीमिया इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? थैलेसीमिया इट इज़, बताएं आप लोग, डॉक्टर आयशा आप बताएं। रिसेसिव। यस, गुड। इसकी आप लोगों ने एग्जाम्पल अच्छे से करनी है, एक एग्जाम के अंदर इसका एमसीक्यूज भी आने के चांसेस हैं। ए लेडी वर्किंग इन रेडिएशन जोन, रेडिएशन जोन के अंदर सबसे पहले कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है? हीम वाला, ब्लड। विच वेन इज यूज्ड इन वेनिसेक्शन? ग्रेट सेफनेस वेन, ठीक है। इस ग्रेट सेफनेस वेन के साथ कौन सी नर्व पास कर रही होती है? सेफनेस। और स्मॉल सेफनेस वेन के साथ? सूरल हाफ। गुड। मोस्ट कॉमन पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा कौन सा होता है? एडिनोमा। पेशेंट हैज़ वीकनेस इन द फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन। तो ये सारे दोनों किस चीज़ का फंक्शन है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जिसके रूट वैल्यू है C5 एंड C6। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया such as Shigella have endotoxin in their outer membrane of cell wall. Deep plantar artery, it is a branch of dorsalis pedis artery. The fetal part of placenta कौन सा होता है? Deciduous basilis and chorion frondosum. Eating raw and undercooked meat can cause infection by tapeworm। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है tapeworm की? ये बहुत दफ़ा हमने कर लिया, praziquantel। 55 ईयर्स ओल्ड मैन विद पेनलेस टेस्टिकुलर, हमने कल भी किया था, लेकिन अब पेनलेस के साथ LDH उसका रेज्ड आ गया है। तो अब आपका आंसर क्या होगा? लिम्फोमा। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि अगर यंग एज के अंदर पेनलेस के साथ रेज्ड LDH आए, इट विल बी सेमिनोमा। और अगर ओल्ड एज में आ जाए तो लिम्फोमा। लेकिन अगर मैच्योर स्टेम सेल्स आ जाए तो ये टेराटोमा होता है। पोस्टीरियर PCA अगर डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा? होमोनिमस हेमिनोपिया विद मैकुलर स्पेरिंग। एक बच्चे के अंदर स्वेट क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का बच्चा है और उसके साथ एसोसिएटेड इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली ब्रोंकिएक्टेसिस होता है, जो एक लंग्स का इन्फेक्शन होता है जिसमें थिक सिक्रेशंस होती हैं। इंजरी टू ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड एंड इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर डैमेज किस नर्व को करती है? जाइगोमैटिक। यस, ट्रैम ट्रैक भी इसी में आता है। नीमोथोरेक्स में क्या होता है? चेस्ट लंग्स इनवर्ट चली जाएगी और चेस्ट वॉल आउटवर्ड चली जाएगी। आफ्टर 6 months ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट प्रेजेंट विद ए साइन ऑफ रीनल फेलियर, हिज सिम्टम्स आर रिजॉल्व बाय गिविंग इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। तो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी से क्या चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी? एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन। नेक्स्ट MCQ है 50 years old hypertensive patient present with severe pain radiating towards the back suddenly collapse। तो अगर वो कोलैप्स हो जाएगा तो ये किस चीज़, क्या चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है? मीडियल नेक्रोसिस। तो ये क्या चीज़ है? डायग्नोसिस का क्या है? डाइसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म। फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड किसकी होती है? परगंजी फाइबर बंडल ऑफ हिज एट्रिया वेंट्रिकल एस ए नोड AV नोड between the stomach bed and pylorus but is present antrum। Which one of the following hernia is associated with herniation through the Hasselbeck triangle के थ्रू डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया पास करता है, जो कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के मीडियली होता है। और लैटरली इसके कौन सा हर्निया होता है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के लैटरली कौन सा हर्निया होता है? इनडायरेक्ट। और इसके बिलो एंड लैटरली प्यूबिक ट्यूबरकल के कौन सा हर्निया होता है? फेमरल होगा, ठीक है। Which one of the following hernia is associated with hernia? ये कर लिया। फर्टिलिन एट द हेड ऑफ स्पर्म हेल्प्स किस में करता है? फर्टिलिन क्या करता है? स्पर्म को
हेल्प करता है एडहेयर होने से टू द ओवम, और एक्रोसिन क्या करता है, एक्रोसोमल रिएक्शन में हेल्प करता है। द पार्ट ऑफ स्पर्म containing द प्रोटीयोलिटिक एंजाइम टू डाइजेस्ट द जोना पेलिसिडा, दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम और एक्रोसोमल रिएक्शन होता है ये, ठीक है। फेमरल ट्रायंगल में हमने क्या किया कि वेन होता है, पहले वेन, आर्टरी और नर्व। आर्टरी लेयर फ्रॉम इनर टू आउटसाइड कौन सा होता है, इनसाइड इंटीमा, मीडिया बाहर, एडवेंटिशिया, अक्सर सिरोजा भी होता है। ये है IMA। CRP, ट्रांसफेरिन एंड हेप्टोग्लोबिन, ये किसकी एग्जाम्पल है, सारे एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हैं, और ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, ये रेज्ड होते हैं। इसका क्या मतलब है कि इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो गई है। सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेशन अकर कब होती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर। बोथ साइड्स लैटरल टेरिगॉइड एंड एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल लीड्स टू, ये माउथ की ओपनिंग करवा देते हैं, ओपन करवा देते हैं, ठीक है। और जो मैसेटर है, मीडियल टेरिगॉइड है, ये क्या करवाता है, और एंटीरियर फाइबर ऑफ टेम्पोरालिस, ये तीनों क्या करवाती हैं, क्लोजिंग ऑफ माउथ, ठीक है। एक्सेस नॉर्मल सेलाइन, अगर हम बहुत ज़्यादा NaCl एक पेशेंट को इन्फ्यूज़ कर दें तो उसका ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। ग्लूट इंसुलिन डिपेंडेंट कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, GLUT4 होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे जाती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। और इंटेस्टाइन में कैसे जाती है, इंटेस्टाइन में हमने क्या याद किया था, मैंने आपको एक निमोनिक बना के दिया था, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ठीक है, हमने निमोनिक बनाया था। नेक्स्ट MCQ है कि यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप और पैलेट है, तो यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप और पैलेट में क्या आएगा, फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द मैक्सिलरी प्रोमिनेंस विद द मीडियल नेजल प्रोमिनेंस, ठीक है। कॉज ऑफ किडनी स्टोन्स इन विटामिन A डेफिशिएंसी में क्या होगा, एट्रोफी ऑफ द रीनल म्यूकोजा। 55 years old male having scrotal mass and raised LDH, probable diagnosis क्या आएगा, टेस्टिकुलर लिम्फोमा, ठीक है। थंब फ्लेक्शन कौन करवाता है, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। विच वन पासिस अबव द ट्रांसवर्स अल्नर आर्टरी एंड अल्नर नर्व। इफ यू palpate midway between the ischial tuberosity and greater trochanter, it will be right above। ऊपर से क्या गुजरती है, पिरिफॉर्मिस के ऊपर से क्या गुजर रही होती है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। एक्टोपिक थायराइड हार्मोन इज रिलीज, कौन रिलीज करता है, कार्सिनोमा ऑफ ब्रोंकस या कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स भी आ रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है 30 years old male present with a history of fever, significant weight loss, painful micturition, hematuria, flank mass, his HB is 18। What could be the possible pathology? तो ये हमारे पास रीनल सेल कार्सिनोमा आ जाएगा, ठीक है। उसमें पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो जाता है, और ये बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, वेट लॉस हो जाएगा। Which organ comes from second part from dorsal and ventral primordium, वो पेंक्रियाज आ जाएगी, वेंट्रल और डोर्सल प्राइमोडियम से बन रहा होता है, दो साइड्स होती हैं। नेक्स्ट MCQ से स्टूडेंट एग्जामिनिंग द स्टेनिंग विच शो ग्राम पॉजिटिव कोकाइन चेन बट अटेम्प्ट्स मेड बट कैन नॉट बी कल्चर, अगर वो कल्चर नहीं हो रहा तो हम उसकी नेक्स्ट क्या भेज देंगे, सीरोलॉजी करवा लेंगे उसकी। Patient after gastrectomy develop pernicious anemia due to loss of parietal cells. PCT has brush border which is microvilli. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, नॉर्मली कितना होता है 120 ml होता है, ठीक है। ये हमारे पास कैसे होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम प्लस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन नॉर्मली इसकी वैल्यू 120 ml होती है। नेक्स्ट MCQ है कि 30 years ओल्ड फीमेल है प्रेजेंट विद OPD विद एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, हाइपरटेंशन, आपने इसका डायग्नोसिस बताना है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, हाइपरटेंशन है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर पिगमेंटेशन, इंक्रीज डिप्रेशन, अडीमा फेस है, उसका फेस स्वेल हुआ हुआ है, इंक्रीज फैट ऑन द चेस्ट एंड ट्रंक, इट इज़ लाइकली ड्यू टू एक्सेस ऑफ ACTH, अगर इंक्रीज होगा तो ये कुशिंग डिजीज होगी, ठीक है, कुशिंग डिजीज।
क्योंकि ACTS इंक्रीज हो रहा है. ए पेशेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस विद क्रिप्ट अब्सेस ऑर्गेनिज्म विल बी स्टेप नमूनी for the formation of sacral angle which vertebrae is involved L5. Follicular lymphoma जीन कौन सी इन्वॉल्व होती है BCL2. लो ग्रेड follicular lymphoma ट्रांसलोकेशन कौन सी होती है 14 और 18. ठीक है. AML के अंदर 821 होती है, CML में 922, बर्किट लिम्फोमा में 814, मेंटल लिम्फोमा में 1114, follicular लिम्फोमा में 14 एंड 18, इविंग में 11-22. सेस्मॉइड बोन कौन सी होती है पटेला. A middle-aged woman with pain in the temporal region and pulsation felt in the temporal region, तो ये joint cell arteritis है. ठीक है. Inferior rectal artery किसकी ब्रांच है इंटरनल पोडेंडल, जो कि इंटरनल आईलिक की ब्रांच है. इंजरी टू द ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड एंड इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर किसको डैमेज कर देती है जाइगोमेटिक. हेराइड बोन कहाँ से डेराइव्ड होती है सेकंड फेरेंजियल आर्ट से. विच ड्रग इज यूज्ड इन हेडेक. हेडेक में हम क्या यूज़ करते हैं एर्गोमेट्रिन, लेकिन हेडेक में यूज़ करते हैं लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन द पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, तो वो एर्गोमेट्रिन आएगी. फीमेल विद सिवियर एब्डोमिनल पेन डायग्नोज्ड एज एक्यूट बिलियरी कॉलिक गिवन मॉर्फिन. मॉर्फिन अब आपने दे दी है, लेकिन अभी मॉर्फिन के साथ कोई ऐसी ड्रग है ऐड करनी है जिससे उसका एब्डोमिनल पेन का अच्छा कवर हो जाए. पेन को कवर करने के लिए आप क्या देंगे हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ये जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है ये सारे के सारे MCQs हैं. A patient after eating from restaurant in dinner then at the midnight present with diarrhea due to डायरिया उसे क्यों हो गया है स्टेफ ओरियस की वजह से. अब इसे विब्रोकोलरा नहीं स्टेफ ओरियस की वजह से उसे रेस्टोरेंट से खाना की वजह से. और फेटल डायरिया कौन करवाता है ऐसा डायरिया जिसकी वजह से डेथ हो जाती है. गुड. विब्रोकोलरा करवाते हैं. ठीक है. और वो उसमें राइस वाटर स्टूल्स आते हैं. एओटिक आर्च एन्यूरिज्म किसको कंप्रेस करती है हॉर्सनेस तो वाइस आएगी. रिकरेंट इसके पास से कौन सी गुजरी होती है लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व. विच स्ट्रक्चर आर्चेज ओवर द रूट ऑफ राइट लंग. इसके आगे से एजाइगस वेन गुजरी होती है. ए मेल प्रेजेंट टू द ओपीडी विद 104 फीवर फॉर लास्ट 4 days एंड गिव एंटी मलेरियल्स. अब एक मेल बॉय की हिस्ट्री होगी, इसमें क्या आएगा बॉय की हिस्ट्री होगी, एंटी मलेरियल ड्रग्स की हिस्ट्री होगी और कोला कलर, तो आपका डायग्नोसिस बन जाएगा G6PD. Patient has cirrhosis on the histology. Mallory ward is present. What is the likely cause? Cause क्या होता है alcoholic hepatitis. A woman and man have history of recurrent pregnancy. Their clinical and genetic history is unremarkable, but all pregnancy end up stillbirth. How can you investigate? आप क्या करवाएंगे अब further? Karyotyping करवा लेंगे उसकी. Gram negative bacteria such as Shigella have endotoxin in their outer cell wall. ठीक है. ग्लूकोज एंटर द सेल. स्केलेटल मसल में इंसुलिन डिपेंडेंट होती है GLUT4. सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया किसके अंदर आता है मिनिमल चेंज डिजीज में. ब्लीडिंग फ्रॉम द किडनी कॉन्टेंट विद इन द जीरोटास फेशिया विल गो कहाँ चला जाता है इंफीरियरली इनटू द पेल्विस. थोरेसिक डक्ट ब्लॉक अगर हो जाए तो क्या हो जाती है काइलोपेरिकार्डियम हो जाती है. ठीक है. ये पेपर इसमें कोई MCQ उसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है पेपर 9 में. रिवाइज कर लें इसको. मैं आपका 5 मिनट में वाइवा ले लेती हूँ फिर क्लास एंड करते हैं. ठीक है. अब बताएंगे डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बाय सिक्रेटिन प्रोटीन गैस्ट्रिन या फूड. गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कम कौन करता है सिक्रेटिन. सीरोलॉजी टेस्ट फॉर एस्परजिलस इज ग्लैक्टोसाइडेज ग्लैक्टोमैन ग्लैक्टोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड A. ग्लैक्टोमैन. Apoptosis, it is characterized by nucleus fragment, plasma protein disruption, no host inflammation, adjacent inflammation. Which one of the following occur in inflammation? Transudate, exudate, infection या none? Exudate. Intercostal nerves are from scapular, dorsal lemmayospinal nerve, subscapular या dorsal subscapular. ठीक है. Pain of indirect inguinal hernia is due to compression of which nerve in the inguinal canal? Iliohypogastric, ilioinguinal, femoral या obturator? Ilioinguinal.
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इट इज फॉर्म्ड बाय हाइपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट, लैटरल प्लेट मेसोडर्म या इंटरमीडिएट मेसोडर्म ब्लास्ट. The artery which can be palpated under the mandible near the angle of jaw is facial, lingual, maxillary, ascending pharyngeal. Facial. क्लोरोथायजाइड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या आ जाएगा? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया. सिस्मॉइड बोन इज क्लेविकल, पटेला, फीमर, फिबुला, लेरिंग्स. पटेला. लास्ट एमसीक्यूज है आज का. नॉर्मल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है? 60 ml, 80 ml, 120 ml, 50 ml. ठीक है. थोरेसिक डक्ट अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या हो जाता है? काइलोपेरिकार्डियम, हीमोकार्डियम, हीमोपेरिकार्डियम, इंक्रीज सीवीपी या डिपेंडेंट एडिमा. काइलो डॉक्टोरियम आपका क्या क्वेश्चन है, आप बता दें. बता दें फिर उसके बाद लास्ट पेपर में है 105. पेज नंबर बता दें. 105. अच्छा ये वाला है. आफ्टर ओवोल्यूशन द oocyte इज इन द विच फेज ऑफ सेल साइकिल. ये वाला एमसीक्यूज है. अच्छा एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं. कहते हैं ओवोल्यूशन के बाद oocyte चला जाता है अपने प्रोफेज की सेकेंड मियोटिक डिवीजन में. बट इफ आस्क्ड oocyte अरेस्ट, तो oocyte का अरेस्ट किसके अंदर होता है? तो आपने मेटाफेज को चूज करना है. मेटाफेज के अंदर मियोसिस 2. ठीक है. अब वो बात करें कि वो सिंपल बात करें ऊपर वाली की ओवोल्यूशन हो गई है जो कि हर मंथली होती है. ठीक है. ए बताया है उसमें अरेस्ट तो नहीं हो रही. देखिए ना एक्सप्लेनेशन में उन्होंने खुद बताया है कि अगर तो वो एंटर हो गया प्रोफेज में, ठीक है, तो वो तो इसका आंसर यही है कि प्रोफेज की वो सेकंड मियोटिक डिवीजन है. अगर आंसर आ जाए कि अरेस्ट हो जाए इस फेज में आके, देन आंसर विल बी अल्फा के मेटाफेज की मियोसिस 2 है. एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है. इसमें मैंने तो अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया कि इसका आंसर चार्ली है या अल्फा है. ठीक है. इसके एक्सप्लेनेशन को आपने फॉलो करना है. जब वो पूछे सिंपल बात पूछे तो आपने चार्ली को चूज करना है. अगर अरेस्टेड का वर्ड आ जाए तो आपने अल्फा को चूज करना है. ठीक है. क्लियर है ये एमसीक्यूज. और इसका हमने भी ऐसे ही किया था. इसका चार्ली ही बनता है कि प्रोफेज ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन. मैंने इसका जहाँ भी पढ़ा इसका चार्ली ही ठीक है. ठीक है. चलें अब नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ 2 पेपर्स रह गए हैं. कल का आप लोगों का ऑफ है. आप लोगों ने अपने जितने सेक्शन 4 और 5 के, आपने मुझे 4 का भी वाइवा किसी ने भी नहीं दिया. ठीक है. तो आप लोगों मैं वेट कर रही हूँ कि जब आप लोगों ने सेक्शन 4 प्रिपेयर कर लिया उसका मैंने वाइवा आपसे लेना है. ठीक है. वेडनेसडे को इंशाल्लाह. चलें अब मैंने आपको आज ये 9 वाला पेपर करवाया ना, तो 10 आप लोगों को मैं कल की प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में, कल क्लास नहीं होगी लाइव क्लास, तो कल आप लोगों ने 10 वाला प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू कर लेना है. और वेडनेसडे को आप सारा सेक्शन मुझे 4 का वाइवा देंगी या 5 का देंगी? बाकी भी डॉक्टर आयशा आपका सेक्शन 4 कहाँ तक हो गया? दोनों का. बाकी सबको हमने साथ ले लेके चलना है ना. हाँ जी. ऑब्वियसली आगे टाइम नहीं है, आगे हमने बाकी एस्किस करनी है. डॉक्टर आयशा आपका सेक्शन 5 अभी आप कर रही हैं प्रिपेयर, या सेक्शन 4 आपका कहाँ तक पहुँचा है? फोर आपका हो गया है. चलिए वेडनेसडे को फिर आपने क्लास में 5 आप कंप्लीट, कल का टाइम है आपका, कल आपकी क्लास नहीं होगी, तो आपने सेक्शन 5 कल आपका जितना रह गया है सारे लाइव रिकॉर्डिंग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स और सारे लेक्चर्स का लिंक ग्रुप में शेयर है. आपने कल और परसों 2 दिन है आपके पास. परसों रात को 10 बजे इंशाल्लाह हम 4th और 5 सेक्शन दोनों का वाइवा लेंगे और फिर हम अपनी SK 1 to 17 किताब को बंद करके रख देंगे क्योंकि हमारी इसकी रिवीजन हो जाएगी. ठीक है. फिर हम स्टार्ट करेंगे SK 18 के इंशाल्लाह मेडिसिन के पेपर्स. ठीक है. तो अगर आप साथ साथ क्लास में मेरे साथ शेड्यूल को फॉलो करते जाएंगे तो आपकी रिविजन्स होती जाएंगी. ठीक है. ऐसे आपको बाद में बर्डन नहीं लेना पड़ेगा कि मेरी अभी ये वाला बुक रहती है, ये वाली रहती है. ठीक है. क्लास का मतलब यही होता है कि हम साथ साथ चीज़ों को लेके चलें. चलिए ठीक है. फिर इंशाल्लाह वेडनेसडे को आपसे रिवीजन होगी. ठीक है. और कल क्लास नहीं है. ठीक है. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.